If you see your syllabus, there are 3 topics in HRD, Human Resource Development. One is training and development. Do you remember that training and development was already covered in workshop? Though you might not have done it with that seriousness, but training and development was covered in workshop. I'll teach it again anyway. So training and development. The second is career planning and development, career development. And the third one is organizational development. ये तीनों HRD का बहुत important topic है और core HR में आता है. Okay? Since this is a formal class of 3rd year, I think it's good to start with HRM. A brief introduction of HRM. Although all of you know what is HRM by now, many of you will be able to give proper definitions of HRM. So I would appreciate if the class remains interactive क्योंकि अभी online class ही चलने वाली है आपकी. Switch on your cameras and make it a proper class. Don't make it a monologue. Tell me, what is human resource management? It is the art of managing and encouraging people at work so that they give 100% towards the organization. Others? See, human resource management, you all know that it is managing people at work. Now, since people at work can be found to be working both individually and in groups, so the management angle will take place both in terms of individual and groups. Okay? Human resource management is the art of procuring people. अगर आप फ्लिपो का definition से जाएं HRM में, then you find that human resource management is the art of procuring people, developing people, compensating people, and separating people. ठीक है? Human resource management is responsible for from the moment you join an organization until the moment you separate from the organization. इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बीच में एक टर्म आता है जो अभी हम लोग यूज किए. वन टर्म इज देयर व्हिच इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट? जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. पहले समझो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. When you see the term human resource management and development, do not get confused. HRD is a part of HRM. ठीक है? HRM में बहुत कुछ आता है जैसे procurement. अभी हम लोग डिस्कस किए. We discussed human resource management में क्या-क्या functions हैं. We discussed it that it is the art of procuring people, मतलब hiring people. Hiring में क्या-क्या आता है? क्या-क्या प्रोसेस आता है बताओ जल्दी जल्दी. पढ़ाए थे ना तुम लोग को? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. वेरी गुड. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आता है. देन यू हैव द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग पीपल, राइट? आपने एक बार उनको हायर कर लिया, प्रोक्योर कर लिया, उसके बाद आप उनको मेंटेन करेंगे. कैसे मेंटेन करेंगे? मेंटेन करने का क्या मतलब होता है? That the employee should be looking forward to working in the organization and not leaving that organization, right? मेंटेन करने में क्या क्या प्रोसेस आएगा? जैसे तुम उसको गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस दो, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी पे ध्यान दो, ओके? इंसेंटिव हो, कॉम्पेंसेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. देन कम्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट है. देखो,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि अभी के टाइम पे द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द होल cannot be developed without developing the human resource of that organization. Okay? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करना है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, तो ये मस्ट है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को डेवलप करना जरूरी है, उनमें स्किल्स इम्पार्ट करना जरूरी है, उनको ग्रो करना जरूरी है। और अभी के टाइम पे ये जो HRD है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। HRM एक पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन HRD इज अ रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट। 1970s के आसपास का ये कॉन्सेप्ट है इंडिया में। लार्सन एंड टूब्रो ने इसको पहली बार इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सेंटर एक्सेलराई जमशेदपुर में खुला। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस बेटर अंडरस्टैंड टुडे कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बताओ, सोच के, इतना वर्कशॉप किए, एड ऑन पढ़ाए तुम लोग, क्यों ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है? जो भी तुम लोग वर्कशॉप से जो भी मेमोरी होगी, याद तो नहीं होगा पूरा, लेकिन फिर भी अब क्योंकि तुम्हारा कोर्स सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ना जरूरी है। जो प्रोक्यूरिंग पीपल कर रहे हैं हम लोग ना, वो अच्छे तरीका से कर पाए, इसलिए डेवलप करना जरूरी है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे तब ये बात बताए थे ना कि लेबर एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ एप्रिशिएट होती है। ये बताए थे? यस मैम। टाइम के साथ एप्रिशिएट क्यों होती है? क्योंकि जैसे तुम अभी कहीं ज्वाइन करोगे PPM करने के बाद, तुम्हारी वैल्यू क्या सेम रहेगी जो तुमको 3 साल काम करने के बाद रहेगी? नो मैम, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 3 साल में तुम्हारा नॉलेज बढ़ जाएगा, 3 साल में तुम काफी चीजों में ट्रेन हो जाओगे, 3 साल में तुम नए स्किल्स को सीख लोगे। सो तुम्हारी वैल्यू मार्केट में एप्रिशिएट होगी। आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फ्रेशर हो, किसी छोटी कंपनी से भी स्टार्ट करो, फ्रेशर का टैग हटाओ, पहले लर्न योर वर्क, पहले काम सीखो। ऐसा होता है ना? होता है ना? ये इसी कारण से होता है क्योंकि जब तुम 3 साल या 2 साल 1 साल काम कर चुके होते हो, योर वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड, यू हैव बीन डेवलप्ड। और अभी के टाइम पे बिग ऑर्गेनाइजेशंस ये अच्छी तरीके से समझती है कि गिवन द सेम सेट ऑफ फैक्टर्स, अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेम कैपेसिटी का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी है, अगर ए के पास भी उतना ही लैंड है जितना बी के पास है, उतना ही कैपिटल है, उतना ही मशीन है, उतनी ही टेक्नोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी उतना ही है, बट if you have skilled and trained laborers in your organization, it is more likely to excel. आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल करेगा। इसीलिए एक जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ये समझती हैं कि सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी ले आने से उनकी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर से आगे नहीं निकलेंगी। यू नीड टू हैव कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, you need to develop the employees who are already working in your organization. अब देखो, ये वाला क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास देंगे हम, इसके बाद से तुम्हारा एक्चुअल जो सिलेबस में है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तुमको ये समझना जरूरी है कि HRD क्या होता है और क्यों किया जाता है, वरना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तुम्हारा पहला टॉपिक है, वहां से स्टार्ट कर देंगे और बहुत पढ़ाई भी है, बहुत लोगों को याद भी होगा। So HRD is important because the organizations have understood this very clearly कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने लोगों को डेवलप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो चलो तुम स्टूडेंट हो तो तुम इस एंगल से समझो, 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, जो एक इंस्टीट्यूट अपने टीचर्स को रेगुलरली ट्रेन करते हैं। ठीक है, हर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल पे टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, ये सुने हो?
टीचर्स ट्रेनिंग सुने हो? यस क्यों मैम। कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है क्योंकि हम जो तुमको अभी पढ़ा रहे हैं वो इस एरा के हिसाब से रेलेवेंट है। लेकिन तुम सोचो, अभी पाइथन जरूरी है ना? पाइथन इज समथिंग, ब्लॉकचेन पे अभी काम हुआ। ब्लॉकचेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो अगर तुमको फोर्ट्रॉन ही पढ़ाया जाए अगले 20 साल भी, तो कोई काम का है? वो कोई काम का नहीं है। इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग, दिस इज रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, लेकिन 5 साल बाद क्या चेंज हो जाएगा मार्केट में और स्टूडेंट्स को कुछ अलग पढ़ाना होगा, फॉर दैट आई नीड टू बी ट्रेन्ड, राइट? अगर मुझे ट्रेन नहीं किया जाए, मुझे अब जितनी नॉलेज है उसी के साथ छोड़ दिया जाए, तो क्या यहाँ के स्टूडेंट्स में एफिशिएंसी आएगी? बिकॉज आई विल बी टीचिंग द सेम थिंग, जो हम करा रहे हैं हम उसी तरीके से कराएंगे। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, करियर प्लानिंग, ये सारी चीजें एचआरडी में आती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये सब चीज तुम लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से क्लास करना, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू करने जाओगे तो एचआर की सबसे खास बात क्या होती है ना, कि तुम कि कहीं पे भी काम करो एचआर स्किल्स तुमको चाहिए ही चाहिए। तुम मार्केटिंग में करो, तुम प्रोडक्शन में करो, तुम सेल्स में करो, तुम एचआर में करो, तुमको एचआर की स्किल्स चाहिए होगी। प्लस these things, these subjects help you form a smart answer for your interview also, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने लोगों से, जो फ्यूचर एम्प्लॉयज हैं, उनसे चाहिए क्या। और जब तुमको ये पता होगा कि तुम्हारे एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, तो तुम भी अपना आंसर बेटर तरीके से फ्रेम करोगे। तो कुछ जो 3-4 टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से इसका क्लास करना। तो एचआरडी में जैसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आता है, यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम ओडी की बात करते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में भी। इसीलिए हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। सपोज करो जैसे टेक महिंद्रा and likewise many other organizations, they are using a lot of technology in HR. तुमको एड ऑन पढ़ाए थे, एड ऑन में हम पेरोल पढ़ाए थे ना। पेरोल में भी तुमको हम बताए थे कि ये सॉफ्टवेयर बहुत छोटे स्केल से लेके बहुत ऊंचे स्केल तक, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन। मॉड्यूल्स माने, जैसे मान लो कि पटना का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मौर्य लुक में, जिसकी ऑफिस है, 50-60 एम्प्लॉयज के साथ काम करता है। ये एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसने पेरोल का एक सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, क्योंकि अब मैन्युअली काम कहीं नहीं होता है। पेरोल का एक सॉफ्टवेयर लिया जिसमें उसने ऑनबोर्डिंग भी ऐड करवा दिया। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जैसे इंफोसिस है, टीसीएस है, इस तरीके की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव कंप्लीटली टर्न्ड इनटू टेक्नोलॉजी। जैसे पेरोल के साथ उन्होंने रिक्रूटमेंट भी ऐड करवा लिया है, पेरोल के साथ उन्होंने परफॉर्मेंस अप्रेजल भी ऐड करवा लिया है। ये सब बताए थे हम तुमको उस वक्त कि परफॉर्मेंस अप्रेजल भी ऐड होता है, क्योंकि जब आपको अगर किसी एम्प्लॉय का बायोडेटा देखना है कि भाई इसने पूरे साल कैसे काम किया, न्यू प्रोजेक्ट के लिए ये एलिजिबल है कि नहीं, आप उसका फाइल नहीं निकालेंगे। यू विल क्विकली लॉग इनटू दैट पर्सन्स आईडी। आप उनकी आईडी में लॉग इन करेंगे एम्प्लॉय आईडी से, और आप देखेंगे कि उसका बायोमेट्रिक भी उससे अटैच्ड होता है। जब आप बायोमेट्रिक लगाते हैं तो एक बायोमेट्रिक का कॉपी अटेंडेंस के लिए जाता है और सेम उसका कॉपी पेरोल में जाता है। आपकी रेगुलरिटी देखी जा रही है, आपका डिसिप्लिन देखा जा रहा है, आपकी सैलरी देखी जा रही है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जा रहा है। जब अप्रेजल किया जाता है तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इतनी टेक्नोलॉजी अगर वास्ट हो रही है, तो इतनी टेक्नोलॉजी को यूज करने और चलाने वाला जो बंदा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी तो स्किल्ड चाहिए, राइट? So it is then that the organization needs to think कि अगर कोई टेक्नोलॉजी अभी करेंटली रन कर रही है या कोई टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन लाना चाह रही है अपने अंदर, उसके लिए उसको अपने बंदों को स्किल्ड करना होगा, तो ट्रेनिंग देनी होगी, राइट?
प्लस देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी करंटली जो ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर का इंपॉर्टेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम ट्रेनिंग के साथ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आपका जो टॉपिक है वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, पहला वो डेवलपमेंट भी है, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तब दोनों में अंतर पढ़ाएंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट एंगल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस। अंडरस्टूड? आपके बिहेवियर में चेंज लाना बहुत जरूरी है। जब आप 10 साल 12 साल काम कर लेते हैं, आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंचते हैं, आप सिर्फ अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होते। तुम लोग अभी ज्वाइन करोगे कहीं तो 2-3 सालों के लिए सिर्फ अपने काम के लिए अकाउंटेबल होगे, लेकिन जब 10 साल कहीं काम कर लोगे, यू विल नॉट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन थिंग, तब तुम एक टीम लीड कर रहे होगे। 10 साल क्यों, 5-6 साल में ही कोई टीम लीड कर रहे होगे। If you have 7 person in a team, you are not just working, and your accountability is not just restricted to yourself. You will be responsible, or you will be an influencer for the entire team. तब आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। इसीलिए आपको ग्रो कराना ऑर्गेनाइजेशन अपनी ड्यूटी समझता है। आपकी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज को ग्रो कराना ऑर्गेनाइजेशन अपनी ड्यूटी समझता है, क्योंकि दैट इज द वे द ऑर्गेनाइजेशन विल इनकलकेट एंड डिफ्यूज योर पर्सनल कॉम्पिटेंसीज टू द अदर्स। ठीक है, आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं। आपने ये सब सुना है कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजर्स को डेवलपमेंट का स्किल्स होता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह सुने हो कभी? Yes, ma'am. या पोस्टर वगैरह कभी तुम किसी इंस्टीट्यूट या ऐसे तुम कहीं क्रॉस करना तो तुम वहां पर देखना कि स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह बनाया जाता है। और मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करने का या डेवलप करने का रीजन यही होता है कि थ्रू देयर पर्सनल कॉम्पिटेंसीज वो बाकी लोगों को भी टीम में गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस वे दे take care of the entire organization. Okay, training and development are two different things, और वो हम नेक्स्ट क्लास से डिटेल में तुम्हारा टॉपिक शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए समझो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल याद है? रिमेम्बर परफॉर्मेंस अप्रेजल? पूरा याद नहीं होगा लेकिन पढ़ाए हैं ये तो याद है। Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा बहुत याद है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? थोड़ा बहुत नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, राइट? देखो तुम लोगों का थर्ड ईयर में था HRD, इसीलिए तुम लोग को बोले थे कि तुम लोग इसको एड ऑन कोर्स की तरह मत लो, ये तुम्हारा मेन कोर्स ही है, और अभी हमको वो सारी चीजें फिर से रिपीट करनी होगी, लेकिन ठीक है तुम लोग रिवाइज कर लोगे, याद आ जाएगा जल्दी, इट विल नॉट बी न्यू फॉर यू। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल is the systematic evaluation of an employee's performance at workplace, right? तुमने एक साल में कैसे काम किया ये सुना है ना कि कुछ दिन एक साल काम करने के बाद सैलरी बढ़ जाती है, Yes, Yes, ma'am. या फिर काम से निकाल भी दिया जाता है, yes, ma'am. Yes, ma'am. या प्रमोट कर दिया जाता है, या ट्रांसफर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव चार्ट कुछ भी याद है? अगर उस कॉपी में लिखा होगा तो काइंडली उसको पलट के देखें। अभी आज की क्लास के बाद एक बार बस ऊपर से उसको पलट करके देखो, वो सारी चीजें तुमको यहाँ पर काम आएंगी। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी HRD का एक पार्ट है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डेवलप करने के लिए जो एक मेथड है, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तुमको पढ़ना है, तुम्हारे मॉड्यूल में हम देख रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तुमको पढ़ना है, उसी तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है जो हम तुमको पूरा पढ़ा चुके हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग योर
परफॉर्मेंस एट योर वर्क प्लेस। देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एक पुरानी बात है, शुरू से ही एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है कि आपने 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, उस हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलता है, पैसा बढ़ता है, कोई न्यू ड्यूटी अलॉट होनी चाहिए तुमको कि नहीं, तुम्हारे पास उतना स्किल्स है कि नहीं। बट एचआरडी इतना डेवलप किया है अभी, और एचआरडी के ऊपर इतना फोकस है कि दिस ह्यूमन रिसोर्स कि दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल हैज गॉट अ न्यू टर्म टुडे which is known as potential appraisal। मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल एक पास्ट की बात है, तुमने जो काम किया उस बेसिस पे तुम्हारा इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि नहीं, यानी मान लो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कुछ अंडरटेक करने के लिए सोच रही है, सो इन दैट केस तुम सुटेबल हो कि नहीं, तुम टीम में बढ़िया काम कर सकते हो कि नहीं, तुम टीम लीड कर सकते हो कि नहीं, तुमको ऑन साइट भेजा जा सकता है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर ट्रेनिंग में खर्च करके ऑर्गेनाइजेशन को जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई समझते हो, आरओआई समझते होगे ना? Yes, Don't ma'am. say कि you don't understand return on investment. You understand that कि Yes, ma'am. तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन को आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें अब पोटेंशियल अप्रेजल से ढूंढी जाती है। 360 डिग्री अप्रेजल किसको किसको याद है? पढ़ाए थे ये, किसको किसको याद है, बस यही बताओ। सुनील वाज देयर मैम इन क्लास, पढ़ाई थी मैम, पढ़ाए थे ना? पढ़ाई थी आप? यस मैम। 360 degree appraisal is the most new method that most modern industries, most modern organizations are using। जैसे कि रिलायंस यूज करती है, विप्रो यूज करती है 360 डिग्री अप्रेजल, और ये एक बहुत एक्सटेंसिव मेथड है किसी भी एम्प्लॉय के बारे में जज करने का। इस 360 डिग्री अप्रेजल ने किस चीज के ऊपर टैप लगाया? 360 डिग्री अप्रेजल ने बिहेवियर के ऊपर टैप लगाया। तुमको हम ये सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि एचआरडी क्यों किया जाता है और क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले ऐसे होता था, देखो 2 आदमी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या तुम्हारे साथ ही कोई बंदा काम कर रहा है, जब अप्रेजल हुआ तो तुमसे ज्यादा अगले का अप्रेजल हुआ, उसका मार्क्स ज्यादा अच्छा है, उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ी। तुम सोचोगे कि मैं पूरे साल रेगुलर था, मैंने टाइम पे काम खत्म करके दिया, मैं डिसिप्लिन था, फिर अप्रेजल अगले का क्यों बेहतर हुआ मुझसे? मे बी दैट पर्सन इज more compatible when he is put in a group, when he is put in a team, and you are not that compatible। आप टीम में compliance नहीं करते हैं, you do not comply with the team norms, आपका झगड़ा हो जाता है टीम में, आप टीम के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। एंड जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज के डेट में, उसमें टीम का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है। देयर इज अ टीम ऑफ 7 or 8, ओके, देयर इज अ टीम ऑफ 7 or 8, जस्ट 1 minute, इट्स टू मच ऑफ नॉइज, ओके। टीम का बहुत इंपॉर्टेंस है, और टीम में रहने के लिए आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मे बी आप सिंगल बहुत अच्छा काम करते हैं, और जैसे आपको टीम में डाला जाता है, आपकी लड़ाई हो जाती है, आप टीम में काम नहीं कर सकते हैं, आप ग्रुप नॉर्म से कॉम्प्लाई नहीं कर सकते। दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर अबाउट योर पर्सनैलिटी, और इसीलिए डेवलपमेंट और ट्रेनिंग जैसी बातें कही जाती है, क्योंकि आप सिर्फ इंडिविजुअल नहीं हैं। इन अ cumulative way, you are contributing to the overall productivity and efficiency of the organization, and if you cannot do that, then probably you need to be developed, or you need to be, you will always be a less preferred employee in the organization। समझ में आया एचआरडी? थोड़ा बहुत समझ yes में आया ma'am, कि डेवलप करना क्यों, डेवलप करने से क्या मतलब है? यानी आपको एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, आपको इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि आप अपने टीममेट्स के साथ अच्छे तरीके से रहें ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर आपका झगड़ा होगा एंड इफ यू आर नॉट इन गुड टर्म्स, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इससे डाउन होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इससे कम होती है। और आप टीममेट्स के साथ अच्छे से रहें, आप अपने
सीनियर्स के साथ अच्छे से रहें, आप अपनी जूनियर्स के साथ अच्छे से रहें। आज जाना और कॉपी में पलट के देखना 360 डिग्री अप्रेजल में अप्रेजल किस किस एंगल से होता है, कौन कौन अप्रेज करता है तुमको। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज तक तुमने सिर्फ यही सुना होगा ना कि अप्रेजल तुम्हारे सीनियर्स करते हैं या तुम्हारे बॉस करता है, लेकिन 360 डिग्री अप्रेजल एक ऐसा अप्रेजल है जिसमें तुम्हारा जूनियर भी तुमको अप्रेज करेगा, राइट? तुम्हारा सबऑर्डिनेट तुमको अप्रेज करेगा। अब सीधा सीधा इस चीज का क्या मतलब है? सीधा सीधा इस चीज का मतलब है कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस को खुश करके काम कर लेंगे, देन दिस इज रॉन्ग। यू नीड टू इम्प्रूव योर बिहेवियर विथ योर सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो, और आपको उनको कोऑपरेट करना ही होगा काम में। अगर वो काम सीखना चाह रहे हैं, देन ही कम टू यू टू लर्न समथिंग। यू नीड टू इम्प्रूव ऑन योर बिहेवियर, अदरवाइज वो आपका अप्रेजल खराब कर देंगे। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये सब एचआरडी को फैसिलिटेट करता है। समझ में आई बात? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना कि एचआरडी क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी Yes, ma'am.